Okay, so let's start. Till the last class, we have studied the direct mapping. In direct mapping, the address was divided into three parts. Basically, the first part was block offset, and this whole part was block number. Or you can divide this block number into two parts. This is line number or line number of cache, or this is our tag, okay, which is used to identify the block number, actually inside which block number is present in our line. Sorry. So this was RAM. The RAM was divided into frames or blocks, and here we have cache. Let's say in our cache we have 4 lines. So in 0th line we can have only those block numbers which will result remainder 0. So block number mod number of lines is the line number. Okay, so let's say there are 16 blocks, okay, of each 4 bytes. So that means in the 0th line number we can have 0 block number, 4 block number, or 8 or 12. These are the block numbers which can be inside the line number 0. Similarly 5 and 1 and 9 and 13, or 2, 6, 10, 14, or 3, 7, 11, or 15. Because let's say if you want to talk about 7, so block number 7 mod number of lines are 4 equal to 3. So that is the line number of 3, and it need one comparator to find which block is present in which number of line. So let's say for 7th number of block we have what will be the block number 7. So 0, 1, 1, 1, and what is the block offset? So in the block number 7 we have 4 bytes. Which byte we want to access? Let's say 1, 0, second byte. So 0, 1 is the tag number, because this is 0th, this is 0, 0, this is 0, 1, this is 1, 0, this is 1, 1, and this 1, 1 is the line number, that is 3, and 1, 0 will be the number of byte, that second byte we want to access. The problem with this is here the conflict miss is present. Conflict miss is the main problem of our direct mapping. What is conflict miss? Let's take a question and examine that. So let's say we have 5, 6, 4, 8, 9, 12, 15, and 20. These are the block numbers we have, and let's say number of lines equal to 4. Number of lines equal to 4. So let's say this is our cache in which we have 4 lines, 0, 1, 2, 3. Okay, now this block number mod 4, which is the number of lines, is equal to line number. So 5 will come here, 6 will come here. Okay, now 4 will come here. This 8 will come where? This 8 mod 4 equal to 0. So you have to remove 4 and you have to replace it with 8. Although we have space available in cache, then also we have to replace some block. हमारे पास कैश के अंदर यहाँ पे खाली स्पेस है, लेकिन फिर भी हमें 4 को रिप्लेस करना पड़ रहा है. ये क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मिस. दिस इज कॉन्फ्लिक्ट मिस. ये कॉन्फ्लिक्ट मिस प्रॉब्लम है हमारे पास किसमें? डायरेक्ट मैपिंग में. इसका एक वर्स्ट केस दिखाता हूं मैं आपको. व्हाट इज द वर्स्ट केस? इन वर्स्ट केस, इफ वी हैव
0 4 8 12, 0 4 8 12 and so on. So if we have the same cache of line numbers 4 0 1 2 3, so 0 will come in 0, 4 will come to replace this 0, 4 will come, this 8 will come in place of 4, this 12 will come in place of 8, and now this 0 will come in place of 0, this 12. अब ये 0 अगर हमने यहाँ पे रखा होता और इनको कहीं और प्लेस किया होता तो ये इस 0 के लिए मिस ना होता, लेकिन अभी ये मिस है। तो क्या हुआ, ये सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट मिसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट मिस। जबकि हमारे पास पूरी की पूरी कैश खाली पड़ी हुई है, तब भी हमारे पास में मिसेस हुए जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ मैपिंग। इन दिस मैपिंग व्हाट वी डू इज, लेट्स से हमारे पास में 16 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, 16 ब्लॉक्स ऑफ लेट्स से 4 bytes each, 16 blocks of 4 bytes each, okay, and let's say cache have 4 lines, okay. So हमारे पास ये एक रैम है जिसके अंदर 16 ब्लॉक्स हैं, 0 1 2 3 अप टू 15, ये हमारी रैम है, और यहाँ पे हमारे पास कैश है, इसके अंदर हमारे पास 4 लाइंस हैं। अब इसके अंदर एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 0 यहाँ पे जाएगा और 1 यहाँ पे जाएगा और 2 यहाँ पे जाएगा और 3 यहाँ पे जाएगा, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दे कैन गो एनीवेयर दे वांट टू। ये यहाँ पे अगर 0 जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि 4 यहीं पे जाएगा, 4 कैन कम हियर से, और 8 कैन कम हियर, 12 कैन कम हियर, ओके। सो एनी ब्लॉक कैन गो इन एनी लाइन ऑफ द कैश, ये हमारे पास में यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये 4 है, ये 8 है और ये 12 है, तो दे कैन कम हियर नॉट हियर, ओके, वेयर एवर दे वॉन्ट टू, ठीक है। तो अगर हमारे पास लेट से रिक्वायर्ड ये हुआ कि 0 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, 12 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 0 को यहाँ पे डालूँगा, 4 को मैं उसके नेक्स्ट वाली लाइन में डाल सकता हूँ, 8 वाले ब्लॉक को मैं उसके नेक्स्ट वाली लाइन में डाल सकता हूँ, 12 को उसके नेक्स्ट वाले लाइन में डाल सकता हूँ। अनलाइक डायरेक्ट मैपिंग that these all blocks will go into line number 0 only, this is not the problem here, okay। तो इसकी वजह से अब जो कॉन्फ्लिक्ट मिसेस हैं वो हमारे 0 हो गए, बिकॉज जब हमारे पास कैश की पूरी भर जाएगी, साइज ख़त्म हो जाएगा, तभी हमें मिस करने पड़ेंगे, और वो कॉन्फ्लिक्ट मिस नहीं होते हैं, वो कैपेसिटी मिस होते हैं। लेकिन अब इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ गई है। वो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को सुनो। पहले हमारे पास एक ही कंपैरेटर था, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे लिखा भी था 1 कंपैरेटर ओनली। हमारे पास डायरेक्ट मैपिंग में एक ही कंपैरेटर था। अगर हम यहाँ पे किसी भी लाइन में किसी भी ब्लॉक को डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हमें फिक्स था कि 0 4 8 12 लाइन नंबर 0 में ही मिलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे ये किसी भी लाइन में हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे एक कंपैरेटर से या तो काम नहीं चलेगा, या फिर हमें सीरियली एक्सेस करना पड़ेगा। आइदर वी हैव टू एक्सेस सीरियली और वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपैरेटर्स। अगर हम सीरियली एक्सेस करेंगे, पैरेलली एक्सेस नहीं करते हैं, तो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। टाइम क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले इसमें देखेंगे कि पेज ब्लॉक नंबर 12 है, नहीं है, फिर इसमें चेक करेंगे ब्लॉक नंबर 12 है, नहीं है, फिर ब्लॉक नंबर 12 नहीं, ब्लॉक नंबर 12 नहीं। इट्स लाइक लीनियर सर्चिंग, कि हमें की गिवन है और हमें वो सर्च करना है अपने एरे के अंदर।
तो उसमें टाइम बिग O n लग जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से बहुत सारे एक इंडेक्सेस होते जो हर एक इंडेक्स पे पैरेलली चेक कर लें, तो एक ही बारी में रिजल्ट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको सीरियली एक्सेस करने की जगह हम यहाँ पे एक कंपैरेटर, यहाँ पे एक और कंपैरेटर, यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और कंपैरेटर लगा देंगे और इनको ऐसे आपस में जोड़ देंगे। ये एक लाइन नहीं होगी, यहाँ पे बस होगी पूरी, और इन लाइन को हम एक गेट से जोड़ सकते हैं और उस गेट का नाम है और गेट। और गेट क्योंकि अगर चारों में से, इन चारों लाइन में से किसी भी लाइन ने ये कहा यस, तो हमारे पास आंसर आएगा यस। और गेट इसलिए चारों में से किसी एक में ही तो होगा। 12 यहाँ पे है, हमने क्या किया, इन कंपैरेटर में डाला अपना जो चेक करना है, अभी बताऊंगा मैं कैसे चेक करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे लेट से 1 1 0 0, ठीक है, ये डाला हमने 1 1 0 0। अब 1 1 0 0 तो सिर्फ यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कंपेयर करेगा इस 1 1 0 को और ये 1 दे देगा और बाकी सब 0 0 0 दे देंगे। तो हमारे पास और गेट क्या करेगा, इफ एटलीस्ट 1 इज ट्रू द आंसर इज ट्रू। सो यहाँ पे हमारे पास एक और गेट होगा। तो हमारे पास कितने कंपैरेटर हैं, जितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, और गेट कितने हैं, सिर्फ एक ही। अब यहाँ पे आपने देखा हो कि हमारे पास हर एक ब्लॉक के पास टैग है जिनको हम कंपैरेटर से मैप करा रहे हैं। यहाँ पे लाइन नंबर की ज़रूरत है ही नहीं। लाइन नंबर की ज़रूरत तो तब थी ना जब हमें ये पता था कि 0 4 8 12 लाइन नंबर 0 में जाना है, या 1 5 9 13 लाइन नंबर 1 में जाना है, तब हमें लाइन नंबर की ज़रूरत थी। लेकिन अब यहाँ पे लाइन नंबर से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, एनी ब्लॉक कैन गो इन एनी लाइन नंबर। सो दैट्स वाई वी डोंट रिक्वायर लाइन नंबर हियर, बट वी स्टिल रिक्वायर टैग नंबर, बिकॉज हमें ये ज़रूर पता करना है कि विच ब्लॉक इज़ अवेलेबल इन अवर कैश। आपको याद होगा, लाइन नंबर इज यूज टू आइडेंटिफाई द लाइन एंड टैग नंबर और टैग बिट्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द विच ब्लॉक इज अवेलेबल। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। द फर्स्ट वन इज ऑफसेट, जो पुराने वाला था ब्लॉक ऑफसेट वही रहेगा, ठीक है। और दूसरा, अब हमारे पास ये एक ब्लॉक नंबर है, जो पहले था ब्लॉक नंबर वही है, या फिर हमने इसको लाइन की जगह क्या बोल दिया, टैग नंबर, सिर्फ और सिर्फ टैग नंबर। ब्लॉक नंबर खत्म, ब्लॉक नंबर की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अगर आपको लगता है ब्लॉक नंबर की ज़रूरत है तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, लाइन नंबर की ज़रूरत है, नॉट ब्लॉक नंबर। अगर आपको लगता है लाइन नंबर की ज़रूरत है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये 0 वाला ब्लॉक यहाँ पे हो सकता है और ये 4 वाला यहाँ पे हो सकता है, ये 4 की जगह यहाँ पे 5 हो सकता है। सो एनी ब्लॉक कैन गो इन एनी लाइन नंबर, दैट्स वाई देर इज नो नीड ऑफ लाइन नंबर। सो वी हैव यूटिलाइज्ड इट एज टैग नंबर, बिकॉज हाउ मेनी कंपेरेटर्स आर रिक्वायर्ड, जिनको हमें कंपेयर करना है, द नंबर ऑफ लाइन्स, जितनी नंबर ऑफ लाइन्स होंगी उतने ही टैग्स होंगे। तो हमने पूरा का पूरा ये टैग नंबर में यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी दैट। सबसे पहले इसकी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। A main memory block can be placed at any location of cache, किसी भी लोकेशन में जा सकती है कैश के। सेकेंड, द रिप्लेसमेंट is done only when the cache is full. कॉन्फ्लिक्ट मिस अब होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास अगर नीचे जगह खाली होगी
तो हम उसमें डाल देंगे अपना पेज। कॉन्फ्लिक्ट तो तब होता है ना जब 0 और 4 का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 0 अगर है और नीचे जगह खाली है तो हम 4 नीचे डाल देंगे, कॉन्फ्लिक्ट आ ही नहीं रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मिसेज इज 0। हिट रेशो इज वेरी हाई। क्यों हिट रेशो हाई है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास पेज हैं, ब्लॉक्स हैं 0, 4, 8, 12, फिर 0, 4, 8, 12 और इसके आगे ऐसे ही है, तो हमारे पास पहले क्या हो रहा था, सब में मिस हो रहा था बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट मिस था। अब यहाँ पे क्या होगा, हम 0, 4, 8, 12 और ये मिस, ये मिस, ये मिस, ये मिस, शुरू के चारों क्या हैं, मिस, और इसको हम बोलते हैं कंपल्सरी मिस। कंपल्सरी मिस, क्योंकि जो पेज हमारे पास में पहले था ही नहीं कैश में और कैश भी खाली पड़ी थी, तो उसको तो मिस लाना ही करना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी मिस है। फॉर एग्जांपल आप बाजार जाते हो, बाजार से आपको कुछ सामान लेके आना था, स्टेशनरी की शॉप से आप पेन लेके आ गए, वो कंपल्सरी मिस था क्योंकि आपके पास घर में लेट से पेन नहीं था, लेकिन घर आके याद आया कि मुझे किताब भी लेके आनी थी, और फिर आप वापस स्टेशनरी की दुकान पे गए और लेके आए, वो क्या है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट में से, बिकॉज आपको पहले याद नहीं आया। जस्ट सम काइंड ऑफ एन एग्जांपल, ओके। यहाँ पे क्या है, 0 हमारे पास में एक अलग जगह में है, 4 अगर यहीं पे डालेंगे तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा, बट नेक्स्ट अगर लोकेशन खाली है तो हमने वहां डाल दिया। अगर ऐसा होता कि किताब किसी और दुकान से लानी है, वो उस सेम दुकान से नहीं लेनी है जहां से पेन लेना है, तो वो भी कंपलसरी मिस होता। लेकिन अब इसके बाद 0 हमें ये देखना है तो ये रैम में मिल गया, 4 अगर देखना है तो ये रहा रैम में, 8 अगर देखना है तो ये रहा, 12 देखना है तो ये रहा। आपको कोई भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी या लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सब क्या है, हिट। तो इसमें हिट रेशो क्या हो जाता है, वेरी हाई। You don't have to worry about hit ratio, it is very high in this case. The address is divided into this way. So I have already told, so we have word and tag, so or you can say block offset or block number. This is the two parts we have in our associative mapping. और इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को फिजिकल एड्रेस। ये पूरा का पूरा फिजिकल एड्रेस। द टैग कंपैरिजन इज डन सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली कैसे, उसको सुन लो जरा। सीक्वेंशियली मतलब ये नहीं है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सीक्वेंशियली पहले यहाँ कर रहे हैं फिर यहाँ पे कर रहे हैं फिर यहाँ पे, नो, आई डिडंट मीन सीक्वेंशियली लाइक दिस। अगर ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा बिग O N, जैसे आपने किस में देखा है, एरे सर्चिंग में, ठीक है, वो वाली सर्चिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सीक्वेंशियली। बट यहाँ पे हमारे पास 4 बिट्स हैं, तो पहले 0 वाली बिट मैच होगी सीक्वेंशियली, यानी कि सारे के सारे उसमें पैरेलली मैच हो रही है, बट पहले 0 वाली, फिर नेक्स्ट वाली बिट, फिर नेक्स्ट वाली बिट, फिर नेक्स्ट वाली बिट। सो सीक्वेंशियली ये बिट्स मैच हो रही है एक एक करके, बिकॉज कंपेरेटर कैन मैच 1 बिट एट अ टाइम, ओके, नॉट द कंपेरेटर्स कि पहले एक कंपेरेटर में पूरी सारी बिट्स फिर दूसरे कंपेरेटर में सारी बिट्स, ऐसे नहीं हो रही है, ओके। The tag comparison is done sequentially. The complexity of comparison hardware is more, क्योंकि पहले हमारी पैरेलली हो जा रही थी, है ना, पैरेलली हमारी सारी की सारी कंपैरिजन हो जा रही थी, बट अब हमें सीक्वेंशियली करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है कंपैरिजन की, हार्डवेयर की। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टैग कंपैरिजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ
कैश ब्लॉक्स और कैश लाइंस। नंबर ऑफ टैग कंपैरिजन कितने होंगे हमारे पास, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 लाइंस हैं तो 4 ही टैग होंगे और उसमें कंपैरिजन होंगे, मैक्सिमम ये हो सकता है। नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन एंड क्लियर योर डाउट्स। लेट्स से वी हैव मेमोरी साइज इज इक्वल टू 32 GB। तो 32 GB है तो इसका मतलब हो गया हमारे पास 2 to the power 35 bytes। देन लेट्स से ब्लॉक साइज इज इक्वल टू 32 KB, दैट मीन्स 2 to the power 15 bytes। ओके, हमें बताना है टैग बिट्स कितनी होंगी। टैग बिट्स सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर मेमोरी साइज 2 की पावर 35 है तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया 35 बिट्स, और ब्लॉक साइज अगर ये है तो ऑफसेट में 15 बिट्स आ गई। हमने पहले भी किए हैं क्वेश्चंस कि ब्लॉक साइज विल गिव यू द ऑफसेट बिट्स एंड मेमोरी साइज विल गिव यू द टोटल बिट्स। तो ये कितनी बची 20। तो ये टैग है और ये हमारा ऑफसेट है, तो इसीलिए नंबर ऑफ बिट्स इन टैग विल बी 20 बिट्स। 20 बिट्स हमारा इसमें ये आंसर हो गया। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट इज लेट्स से प्रोपोगेशन डिले ऑफ कंपैरेटर इज इक्वल टू 20 इंटू के नैनो सेकेंड। 20 इंटू के मतलब के क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स और नंबर ऑफ टैग बिट्स, क्योंकि उन्होंने पहले आपसे टैग बिट्स पूछी हैं तो इसीलिए यहाँ पे टैग बिट्स नहीं दे सकते हो। प्रोपोगेशन डिले ऑफ कंपैरेटर इज 20 इंटू के नैनो सेकेंड्स एंड प्रोपोगेशन डिले ऑफ और गेट की और गेट को रिजल्ट प्रोसेस करने में लेट से लगता है 10 नैनो सेकेंड। तो व्हाट इज हिट लेटेंसी? हिट लेटेंसी विल बी, देखो मैंने आपको बताया था हिट लेटेंसी फर्स्ट क्लास में। व्हाट इज हिट लेटेंसी? द अमाउंट ऑफ टाइम टू सर्च अ पेज और ब्लॉक इन कैश। तो हिट लेटेंसी क्या हुई 20 इंटू नंबर ऑफ हाउ मेनी बिट्स, ये हमारे पास 20 बिट्स हैं, तो 20 इंटू 20 और गेट एक ही है तो प्लस 10, तो दिस विल बी 410 नैनो सेकेंड। दिस विल बी आवर प्रोपोगेशन डिले और हिट लेटेंसी, टोटल प्रोपोगेशन डिले और हिट लेटेंसी। मिस लेटेंसी क्या होती थी, मैंने आपको बताया था। व्हाट इज मिस लेटेंसी? मिस लेटेंसी वाज द टाइम टेकन बाय आवर ऑपरेटिंग सिस्टम टू get the block from the RAM into cache if it is not found in cache. Okay, that is not asked here. Yes. सर ये होता क्या है प्रोपोगेशन डिले ऑफ कंपैरेटर? Propagation delay is time to travel the result from input to output. जैसे अगर आप लेट से कंप्यूटर ऑन करोगे तो क्या होगा, कंप्यूटर जैसे ही बटन दबाओगे ऐसे ही एकदम चलना शुरू नहीं होगा, पहले कुछ लोड हो रहा होगा उसमें। तो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द टाइम एट विच यू कैन स्टार्ट योर कंप्यूटर, सो यू विल से मी सर इट विल टेक 1 minute टू स्टार्ट। ऐसे ही इनपुट आप जब दोगे तो वो अपने अंदर कुछ प्रोसेस करेगा और तभी तो रिजल्ट देगा, दैट इज प्रोपोगेशन डिले। थैंक यू सर। सर और गेट का मतलब बाय डिफॉल्ट होता ही हमेशा 10 नैनो सेकंड्स है? बेटे ये क्वेश्चन में गिवन होगा, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होगा। ओके जैसे एप्पल का फ़ोन है उसके अंदर लेट से स्टार्ट होने में 10 सेकंड लगते हैं, और लेट से कोई चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन है वो स्टार्ट होने में लेट से 30 सेकंड लगते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन द डिवाइस और टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, और ओवर गेट भी बहुत सारी तरीके के आते हैं, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके थैंक यू सर। रिप्रेजेंटेड बाय टीपीडी। नेटवर्क्स में भी पढ़ोगे आप प्रोपोगेशन डिले, वहाँ पे प्रोपोगेशन डिले मतलब होता है कि टाइम टेकन फॉर इनपुट टू रीच और 1 bit टू रीच फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट। ओके, नॉट आउटपुट नोड, फ्रॉम
इनपुट साइड टू आउटपुट साइड, दैट इज प्रोपोगेशन डिले. एक होता है ट्रांसमिशन डिले. ट्रांसमिशन डिले इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय वन बिट टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ट्रांसमिशन होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, so there are different types of delays which you will study in your computer networks also. Okay, so let's see, this question is done, I think. Okay, so I'll give you a few questions as I have given you the last time, and let's try to solve them. Anybody else, any questions? No sir. Let's say you have 128 KB RAM, 16 KB cache, 256 bytes block size. Then you have, let's say, 32 GB RAM, cache size is, let's say, 1 KB. Let's say this is 32 KB and this is, let's say, 1 KB. Third question, let's say this is 500, this is 512 KB, this is 1 KB and this is 17. Let's say this is 16 GB, 4 KB, 64 MB, 512 KB, 10 and 7. Okay, so whatever is missing you have to fill those values. Try to find out few things and I will try to solve afterwards. जितने हो सकते हैं 6 में से उतने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अभी जो भी मिसिंग है इन चीज़ों में, और फिर उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे.